Hi everyone, this is Professor B.R. Tiwari, and today I am going to take the lecture number 6. Till now, what I have covered in lecture number 1 the basic of the probability, in lecture number 2 how to use permutation in probability, lecture number 3 how to use combination in the probability, lecture number 4 addition theorem, lecture number 5 conditional probability. Now today I am going to take the probability for independent event. So let's see the probability of independent event. So this is the target part which I am going to cover in today's lecture, probability for independent event. Now let's start with the probability of independent. Now what is mean by independent? First of all we will see what is mean by independent event. So for example, suppose this is the box having say 52 cards. If I'm going to draw a card and going to keep aside. Now the remaining cards are 51. Out of 51, I'm going to draw the one more card and I'm asking find the probability it is a red card. Red card. So definitely the first event where we draw the card and kept aside, that will create an impact on the second event. So it is a conditional probability. But what will happen if I am going to replace the first card in the pack? So if I am going to replace the first card in the pack, then it doesn't matter that which card I draw in a first. I mean, so when I was trying to draw a first card, so I'm not bothering about that card, because for the second card there will be the total 52 cards. There will be total 52 cards. So in this case, the first event A does not affect the second event, say B. In initially when I told you, in that case I told you that probability of B when A occurred. So in that scenario, when I kept that card aside, in that scenario the B A was totally dependent on A. So that was the conditional probability. But now this B is independent of A, so therefore it is purely known as the probability of B. Is that clear? So if two events are independent, then the probability of B by A equal to probability of B, or probability of A by B equal to probability of A. So what is the formula for probability of B by A? That is P of A intersection B upon P of A. So if I'm going to multiply, I mean say cross multiply, what I will get? P of A intersection B equal to P of A into P of B. So I can say that if A and B are independent, then P of A and B, that and stands for multiply. Intersection stands for multiply. But for that, event should not be dependent on each other. Event should be independent. तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि बहुत सारी बातें न्यूमेरिकल में जब मैं कर देता हूँ तो मैंने देखा है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज से हो जाते हैं। तो बहुत सारी बातें नहीं कर रहा हूँ कि मान लो ऐसे यूं 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 करके इंटरसेक्शन दिया है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो इंटरसेक्शन तुम्हारा बदल जाएगा मल्टीप्लाई में। कई बार बच्चे बोलते हैं सर हमें तो क्वेश्चन पढ़ के ही नहीं पता चलता कि डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। अरे भाई, ज्यादा से ज्यादा किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं वो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग, अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स, या तो फिर इंडिपेंडेंट वर्ड ऑलरेडी मेंशन्ड होगा। क्लियर? थोड़ी बहुत तो अभी जैसे मैंने बोला कि वुमन विल अलाइव टिल एज ऑफ 55 years is point say 9, and the men will alive at the age of 55 years is say point 8. Find the probability. The now the both men and women are
45 years old, find the probability they will alive after 10 years. तो 45 के तो 10 साल बाद 55 के हो जाएंगे। अब सीधी सी बात है, अब ये प्रॉब्लम में कोई बोले कि सर मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, मैं कहूंगा यार दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओगे? अब पता, ऐसा थोड़ी है कि आदमी मरेगा तो बोलेगा नहीं औरत आ जा तू भी साथ में मर ले। सीधी सी बात है, वो थोड़ी कहेगा कि आ जा तू साथ में मर ले। नहीं, औरत मरेगी तो ये नहीं कहेगी कि आ जा भाई तू भी साथ में मर जा। तो बस सीधी सी बात है कि यहाँ पे डिपेंडेंट है ही नहीं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड बहुत सारी रामायण बता दो, बहुत सारे वेन डायग्राम बता दो, तो हाँ बेनिफिट तो देता है उनके लिए जिनको ऑलरेडी ये सब छोटी छोटी समझ माइंड में है, जिसकी एनालिसिस पावर स्ट्रांग है। बट तुम लोग तो सीधे लैंग्वेज में याद रखो, तुम्हें अगर लगे कि यहाँ पे एंड है या इंटरसेक्शन है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना, प्रोवाइडेड इवेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब कैसे एनालाइज करोगे, क्या करोगे, ये तो तुम जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे उसी से तुम्हारा फंडा क्लियर होगा। सो ये देखो, ये मैंने पहले ही लिख डाला है, पढ़ लो, ये पूरी थियरी पढ़ लो, पूरी थियरी पढ़ लो। बहुत सारी चीजें वही सिंपल लैंग्वेज वाली जो बोला ना कि ऑकरेंस ऑफ ए विल नॉट अफेक्ट द बी, in that case p of a by b equal to p of a or p of b by a equal to p of b. So as per conditional probability we are going to cross multiply, that intersection stands for multiplication. ठीक है, सो चलो आओ आगे के न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं। अब कह रहा है देखो, ए बी एंड सी ट्राई टू हिट द टारगेट साइमल्टेनियसली बट इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे तो सीधे सीधे ये वर्ड इंडिपेंडेंटली दे दिया, तो अब तो मुझे कुछ ये भी नहीं सोचने की जरूरत है कि ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। मैंने तो ये सीधे समझ लिया क्वेश्चन से कि ये तो इंडिपेंडेंट है। फिर क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट आर 3/4। तो मतलब ए, जो बंदा ए है वो टारगेट हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। जो बी है वो हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 5/8। ठीक है, अब हिट न करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, तो 1 माइनस टी ऑफ ए कर लो। या देखो डैश तो मैंने पहले भी सिखा रखा है, डैश निकालना तो 1 माइनस, सो 1 माइनस 3/4 विल गिव यू 1/4, 1 माइनस 1/2 विल गिव यू 1/2, 1 माइनस 5/8 विल गिव यू 3/8। तो ये हमने समझ लिया कि ये इनके डैश हो गए। is hit exactly by any one of them। अब टारगेट पे किसी एक का लगेगा, मतलब जब ए का लगेगा तो बी का नहीं लगेगा, सी का नहीं लगेगा। लिखेंगे कैसे? ए ने शॉट मारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का लग गया, बी का नहीं लगा, सी का नहीं लगा। फिर केस बन रहा है कि मान के चलो कि ए का नहीं लगा लेकिन बी का लग गया, तो लेकिन सी का नहीं लगा क्योंकि एनी वन से करवाना हिट। फिर हमने मान लिया कि ए का भी नहीं लगा, बी का भी नहीं लगा, एंड सी का लग गया। फिर एक बच्चा बोलेगा हाँ सर अगर ये हम समझ भी ले तो आगे क्या करना है? तो सीधे सीधे पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ बी डैश मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ सी डैश, क्योंकि इंडिपेंडेंटली है तो इंटरसेक्शन बन गया मल्टीप्लाई में पी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ सी डैश, और यहाँ पे पी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ बी डैश मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ सी। अब सारी वैल्यूज डाल दो एंड कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो ये चलो हमने पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। इज नॉट हिट बाई एनी वन ऑफ देम। चलो सेकेंड क्वेश्चन, इज नॉट हिट बाई एनी वन ऑफ देम। कोई भी बंदा हिट नहीं कर पाएगा, मतलब ए का ट्राई कर रहा है तो ए नहीं कर पाएगा, एंड बी कर रहा है तो बी का भी नहीं लगेगा, एंड सी कर रहा है तो सी का भी नहीं लगेगा। तो इट्स अ पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश इंटू पी ऑफ बी डैश इंटू पी ऑफ सी डैश। ठीक है, अभी डैश वाले पार्ट मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 1/2 3/8, सो 3/64 हो गया, 3/64 4 2 8, हाँ 3/64 हो गया। तो किसी न किसी का लग ही है, मतलब इसमें किसी का भी नहीं लगेगा, एक बंदे का भी नहीं लगेगा। फिर अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि
इज हिट, इज हिट। अब उसको ये मतलब नहीं है, मान लो जैसे इज हिट में कितने केस बनेंगे, मान लो ए का लग गया, बी का भी लग गया, सी का भी लग गया, ये भी केस चलेगा, उसमें भी हिट हो रहा है। कोई कहे कि ए का नहीं लगा, बी का भी नहीं लगा, सी का लग गया तो भी चलेगा। कोई कह रहा है कि सर ए का भी लगा, बी का भी लगा, लेकिन सी का नहीं लगा, तो भी चलेगा। मतलब वो तो हिट हो रहा है ना, चाहे कोई एक हिट करे, चाहे कोई दो हिट करे, या तीनों के तीनों मिलके हिट कर दे, तो देयर विल बी सो मेनी केसेस। अब सो मेनी केसेस मतलब तीनों का लग गया, ये एक केस आएगा, फिर तीन केस तो उनमें बनेंगे जिसमें किसी दो का लगा, ठीक है, फिर तीन केस उसमें बनेंगे जब एक का लगा बाकी दो का नहीं लगा, तो 6-7 केस बन जाएंगे और फिर वो लंबा सा हो जाएगा। लेकिन टोटल ये जितने भी इवेंट्स हैं, अब इसको देख के बताओ कि किस तरह के हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव पढ़े हो ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होंगे नहीं। मतलब सीधी सी बात है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी क्योंकि एग्जॉस्टिव टाइप की इवेंट है। देखो ऐसा होगा कि अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर ये एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव का नाम मत लिया करो बार बार, फिर क्या है दिमाग में चलता नहीं है। क्योंकि ये चीज मैंने कैसा देखा है, मेरे लेक्चर का बेसिक पर्पस होता है कि उनको भी समझाऊं जो लास्ट बेंचेस पे बैठते हैं और जिन्हें बहुत सारे फंडामेंटल्स एक साथ क्लियर नहीं हो पाते। मेरी पहली बेंच का बच्चा तो डेफिनेटली चिल्ला के बोलेगा सर एग्जॉस्टिव है इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, ठीक है, तो माइनस कर दो जो अनफेवरेबल केसेस है। ये मेरा वो बच्चा बोलता है जो पहली बेंच पे बैठता है, जो अटेंटिव है। लेकिन एक ऐसा बच्चा है जो मुझे कहता है कि सर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें तो नहीं चलती है। तो मैं तुझे सिंपल एनालिसिस बताता हूं, कभी भी अगर हम जिस इवेंट को ले रहे हैं और उसमें नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हो जाए तो बेटर है हम क्या करेंगे, 1 माइनस अनफेवरेबल केसेस, 1 माइनस अनफेवरेबल केसेस, जो केस फेवर ना कर रहा हो बस 1 में से माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर। फिर एक बच्चा बोलेगा सर उसके बारे में बताओ, चलो 1 माइनस इज हिट। अब कब हिट नहीं माना जाएगा, तो बच्चे ने बोला सर जब ए का भी नहीं लगा, बी का भी नहीं लगा एंड सी का भी नहीं लगा, तीनों का मिस हो गया, अब बस वो केस एक माइनस कर दो, ठीक है, एंड कर लो तो 61/64 आ गया। तो देखो इतना इजी है। अब कोई बच्चा बहुत एनालिसिस करना चाहे तो करे, उसको वो पूरी पूरी तरह अगर करना है तो करो। फिर एक बच्चा बोले कि चलो सर अगला मैं करता, इज एग्जैक्टली हिट बाई 2 ऑफ देम। अब 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए पॉज करके पहले कोशिश करो कि खुद तुम्हारा आंसर निकल आए। अगर तुम्हारा आंसर निकल आता है तब तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर देख लो कि दो का लगे, ए इज एग्जैक्टली हिट बाई 2 ऑफ देम, किसी दो बच्चे ने उसको हिट किया, मतलब ए बी ने हिट किया तो सी ने नहीं किया, फिर ए और सी ने हिट किया तो बी का नहीं लगा, ठीक है, और बी और सी का, ए का तो हो गया, सी का भी हो गया, फिर बी और सी का हिट हुआ तो ए का नहीं हुआ, डैश कर दिया। अब P of A 3/4, P of B 1/2, P of C dash 3/8, 3/4 1/2 3/8। फिर दूसरा A C ले लो, 3/4 5/8, B dash 1/2, B का लगा 1/2, C का भी लगा 5/8, A का नहीं लगा 1/4। नाउ डू द कैलकुलेशन एंड गेट द आंसर। तो देखो कितना इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब यहाँ पे कोई बच्चा बोले सर मुझे नहीं क्लियर हुआ कि कैसे आपने इंडिपेंडेंट लिया, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने स्पेसिफाई कर रखा था कि इंडिपेंडेंटली। और ये जो चीज मैं ले रहा हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक से ले रहा हूँ, तो आप समझो कि मैं बोर्ड बुक का ही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। लेकिन कोई कल मुझे क्वेरीज आई थी, एक बच्चा बोल रहा था कि सर बोर्ड बुक के क्यों प्रॉब्लम लेते हो, कुछ अच्छे बुक्स के प्रॉब्लम लो। ठीक है यार, आप पहले बेस तो क्लियर कर लो। एक बार तुम्हारे दिमाग में बेस क्लियर हो गया तो फिर अगला कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें कोई अच्छी बुक लेने में। चलो आओ।
अच्छा, अब हम लेक्चर नंबर 12 से जो वर्किंग पैटर्न है वो बदलेंगे, जिसमें हम मेंस के प्रॉब्लम करेंगे, एडवांस के प्रॉब्लम करेंगे, और अगर कोई बच्चा किसी भी बुक को रिकमेंड करता है तो उसके प्रॉब्लम करने वाले हैं। The probability that student X solved the problem in dynamics 2 by 5 and the probability that student Y will solve the problem 1 by 4. अब probability स्टूडेंट ए का मैं x नाम रख देता, 2/5 चांस है कि वो सॉल्व कर लेगा, लेकिन नहीं चांस हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/5, नहीं कर पाएगा। बी वाला बंदा यानी वाई वाला बंदा 1/4 चांस है कि कर लेगा, लेकिन 3/4 चांस है कि वो नहीं कर पाएगा। अब क्या कहता है, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। अब मैंने मान लो क्लास में पूछा कि बेटा चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताओ, मैंने एक क्विज दिया क्लास में, तो मुझे तब भी अच्छा लगेगा जब एक बच्चा कर ले, तब भी अच्छा लगेगा जब दो बच्चा कर ले, तब भी अच्छा, मान लो कि मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं, तब भी अच्छा लगेगा जब 3 बच्चा कर ले, तब भी अच्छा लगेगा जब 50 के 50 कर ले। लेकिन उस वक्त बिल्कुल मजा नहीं आएगा जब ए को मैंने बोला कि नाइदर ए नॉर बी, तो मैंने एब्रीवेशंस मैंने पढ़ाए थे। अब इसको बहुत हाई फाई फंडा के साथ मत पढ़ो कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, मेरे एब्रीवेशंस देख लो, सेट थियरी देख लो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो इट्स अ पी ऑफ ए डैश इनटू पी ऑफ बी डैश, so that will give you what, 3/5 3/4, so 9/20 वाला चांस है कि एक बच्चा भी प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब एक बच्चा बोले सर सॉल्व कब माना जाएगा, मैंने बोला वही बताया ना कि किसी एक बच्चे को वो 50 बच्चों के बीच में एक प्रॉब्लम रख दिया, बोला कोई सॉल्व करके बताओ, तो तब भी खुशी होगी जब किसी एक को भी आ जाए। मैं कहूंगा राहुल तुम्हें आ गया, चलो वेरी गुड, देखो क्लास राहुल को आ गया। फिर अगर रोहन को भी आ जाए तो मैं कहूंगा देखो राहुल और रोहन को आ गया, तुम बाकी लोगों को नहीं आया। और अगर सारे बच्चों को आ जाए तो मैं कहूंगा चलो क्लैप करो बिकॉज यू ऑल ऑफ यू आर स्कॉलर, और आप सबको क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इतने सारे, अब खैर यहां तो ए को आया बी को नहीं आया, या फिर बी को आया ए को नहीं आया, या फिर ए बी दोनों को आया, तो 3 केस तो बनेंगे। लेकिन रादर देन ओ करने से अच्छा है 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर केसेस ज्यादा हो जाते हैं अनफेवरेबल केसेस से, तो मैं 1 माइनस अनफेवरेबल केस कर देता हूं। तो देखो ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व, ये दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व, तो दैट इज व्हाट 11/20 हो गया। प्रॉब्लम इज सॉल्व एग्जैक्टली बाय वन ऑफ देम। तो ये तो बहुत सीधी सी बात है कि मतलब ए को आया तो उस केस में बी को नहीं आया, और बी को आया तो उस केस में ए को नहीं आया। अब बहुत सीधा है, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई है, पी ऑफ ए 2/5 बी डैश 3/4 प्लस पी ऑफ बी 1/4 into p of a dash 3/5. Now do the calculation, get the answer 6 plus 9/20. तो देख लो कितना डिफिकल्ट है प्रॉब्लम। अगर कोई बच्चा मुझसे कहे तो मैं इसे कहूंगा नहीं भाई, किसी भी कीमत पर डिफिकल्ट नहीं है। ए स्पीक्स ट्रूथ 80%, मतलब बंदा ए जो है वो 80%, 80/100 चांस है, और झूठ बोलने का चांस 20/, हर 100 बातों में से 20 बातें झूठी करता है। ठीक है, और जो बंदा बी है वो 100 में से 60 बातें वो सही करता है, इसका मतलब कि 40 बातें जो है बंदा रॉन्ग आंसर देता, मतलब ट्रूथ नहीं बोलता है। ठीक है, बी डैश 40/100। Find the probability that they contradict each other in narrating an incident, contradicting each other. So therefore total probability में कितना हो जाएगा, total probability। अब एक सिंपल सी चीज है, कोई बोले सर इसमें आपको कैसे पता चला कि इंडिपेंडेंट है। मान लो मैं और मेरा भाई, हम दो लोग बोल रहे हैं, सीधी सी बात है, वो अपने मुंह से बोल रहा है, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी है सही और झूठ बोलने की मेरी अपनी प्रोबेबिलिटी है, एंड वी आर इंडिपेंडेंटली टॉकिंग। कोई सेटिंग नहीं है कि भाई मैं हाँ बोलूं तो तू ना बोलना, सीधी सी बात है, वी आर टॉकिंग इंडिपेंडेंटली, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात हो जानी चाहिए कि हाँ यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे थोड़ी डिपेंड होके बोलेंगे, ए बट नॉट बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए।
केस बनता है ना, और अब P of A इंटू P of B डैश प्लस P of B इंटू P of A डैश। तो अब हमने यहाँ तक अचीव कर लिया। व्हाट इज P of A कितना है, 80/100, P of B डैश 40/100 प्लस P of B 60/100 इंटू 20/100। तो कितना हो जाएगा नीचे 10,000, इट्स 10,000, 3200 एंड 1200, 32 एंड 12 इट्स 4800, सॉरी 44 हो जाएगा, 32 एंड 12 44। तो देखो इसके क्वेश्चंस कभी भी सिंपल वे में सोचना सीख लो। प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे मार्क्स देता है। 8 4 जा 32, 6 2 जा 12, 32 एंड 12 इज 44, जीरो कैंसिल आउट विद जीरो, 44 को काटना है तो 4 से काट लो, चलो 11/25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, यही तो चीज मैंने बोला था। For the probability that man who is 45 years old will be alive till he becomes 70 is 5/12। चलो भाई, मैन का 5/12 प्रोबेबिलिटी है। वाइफ जो है 40 इयर्स, मतलब ये भी 25 साल, ये भी 25 साल तक गैप ले रहे हैं। मैन की वाइफ वो जिंदा रहेगी 65 साल तक, 3/8 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, बंदा अभी 45 इयर्स का है और लेडी जो है वो 40 इयर्स की है, ये करंट में। आफ्टर 25 इयर्स, 25 इयर्स मतलब जो मैन है वो 70 इयर्स का हो जाएगा और जो उसकी वाइफ है वो 65 इयर्स की। और करंट इसकी प्रोबेबिलिटी वो 70 इयर्स का जब होगा तब अलाइव होगा, तब दी गई है, जब लेडी 65 इयर्स की होगी। द कपल विल बी अलाइव, सीधी सी बात है। कपल विल बी अलाइव मतलब आदमी जिंदा है, मैन एंड वाइफ दोनों जिंदा है, ठीक है। और सीधी सी बात है, कोई बोले सर इंडिपेंडेंट कैसे हो गया, वही तो बताया यार। अब थोड़ी बोलेंगे कि चलो आओ साथ में मरा जाए, ठीक है, थोड़ी साथ में मरेंगे यार, सीधी सी बात है। अब इस पे तो मुझे नहीं लगता कोई डिबेट होनी भी चाहिए। कितना हो गया, 5/3 से काट दो 4, 32, 5/32, 5/32, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल अलाइव। हाँ, सीधी सी बात है, मैन अलाइव रहेगा तो वुमन एक्सपायर हो चुकी होगी, वुमन डैश प्लस वुमन अगर अलाइव होगी तो मैन निकल लिया होगा, पीएम डैश 1 माइनस 5/12 दैट इज 7/12। ये 7 है भाई, 7/12। वुमन के एक्सपायर होने की प्रोबेबिलिटी 5/8 है। आगे इसमें पुट करके निकाल लेना, नन ऑफ देम अलाइव, नाइदर मैन नॉर वीमेन। तो मेरा वो एब्रीवेशन वाला लेक्चर देख लो, सेट थियरी में मैंने कैसे यूज किया, दैट्स इट। वुमन भी अलाइव नहीं है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल अलाइव, एटलीस्ट वन ऑफ देम। अगर दोनों भी होते तो भी चलेगा, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब मैन और वीमेन। अब यूनियन वाली बात आ गई तो चलो अगले इसमें जाते हैं, डी। चलो मैन और वीमेन, मैन और वीमेन लिख देते हैं। तो इट्स अ सिंपल मैन अलाइव प्लस वीमेन अलाइव माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, वीमेन। नाउ डू द कैलकुलेशन। मैन का तो जो भी था 5/12 and 3/8, 5/12 and 3/8 minus 5/12 into 3/8. That's it. Do the calculation and get the answer. आगे कहते हैं, a box contain 10 red balls and 15 green balls. 10 red and 15 green. Two balls are drawn in succession without replacement, मतलब पहले बॉल निकाला फिर उसके बाद एक और निकाला,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज रेड एंड सेकेंड इज ग्रीन। तो सीधी बात है, पहला इवेंट इतना अफेक्ट करेगा। अभी ए के लिए आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पहले रेड आ जाए और दूसरा ग्रीन आए जब पहला रेड हो। ठीक है, ये डिपेंडेंट इसलिए हुआ, रेड आने से ग्रीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सैंपल पॉइंट यहां से अफेक्ट हो जाएगा क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो रेड आने की पॉसिबिलिटी 10/25 है और ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी 15/24 हो जाएगा। वन इज रेड एंड अदर वन इज ग्रीन। अच्छा, अब देखो, कोई बच्चा बोलेगा सर एक ही तो है। नहीं, एक नहीं है। वो कह रहा है कि एक रेड, पहला रेड आए तो दूसरा ग्रीन आ जाए, या फिर पहला ग्रीन आ जाए। उसे इससे मतलब नहीं है, उसे कलर से मतलब है, उसे ऑर्डर से मतलब नहीं है। तो हमें वो केस भी लेने पड़ेंगे कि रेड जब पहला बॉल ग्रीन हुआ तो रेड आने की पॉसिबिलिटी 10/25, ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी 15/24, प्लस ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी 15/25, रेड आने की पॉसिबिलिटी 10/24। सो इट्स अ 150 into 2, 300/25 into 24, यानी कि 600। 25 into 25 625, तो 300, तो 1/2 वाली पॉसिबिलिटी होगी। A problem in mathematics is given to 3 students whose chances of solving the, बस वही सेम प्रॉब्लम है रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। चलो भाई, ए को अब यही तुम समझ लो ना, एग्जाम में जब तुम पेपर लिखने बैठते हो तो थोड़ी डिपेंडेंट रहते हो, भैया तू एक काम करना, तू पढ़ के आना, मैं तेरा कॉपी मारूंगा। हाँ, कुछ बच्चे तो होते भी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लॉजिकली, मजाक में तो ये बातें मैंने कह दी, बट लॉजिकली किसी भी एग्जाम के लिए हम डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। सारे बच्चे अपना घर पे पढ़ते हैं। 2/3, सी जो है 1/4, सी डैश जो है 1 माइनस पी ऑफ सी 1 माइनस 1/4 हो गया। सो दैट इज व्हाट 3/4। सो प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड? प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, टोटल प्रोबेबिलिटी ले लो। प्रॉब्लम इज 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। 1 माइनस, एक मिनट रुक जाओ, इवेंट हैपेंड प्लस नॉट हैपेंड, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। सीधा सा लॉजिक मैंने लगाया है। नॉट सॉल्व्ड मतलब ए ने ट्राई किया, उसे आंसर नहीं आया, एंड फिर बी को मैंने बोला, उसने ट्राई किया, उसे भी आंसर नहीं आया, एंड फिर सी ने ट्राई किया, उसे भी नहीं आया। उस केस में अनसॉल्व्ड माना जाएगा। 1/4 हो गया, 3/4 आंसर आ गया। लुक एट हियर। अब बताओ कितना डिफिकल्ट ये था। इंडिपेंडेंट इवेंट में ऑकरेंस ऑफ ए विल नॉट अफेक्ट द बी, सीधी सी बात है। अब ये रहा तुम्हारा होमवर्क प्रॉब्लम, देख लो ढंग से। ये सारे प्रॉब्लम बीच में लाइंस मैंने डाल रखी है क्योंकि मैंने सोचा एक ही पेपर में एक ही स्क्रीन पे सारे प्रॉब्लम दिखा दो। तो ये मैंने कर दिया है, आप देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अब स्क्रीन को सिंपल पॉज कर दो, सारे प्रॉब्लम 1 बाय 1 सॉल्व करो। चाहे तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो, और अगर आप कमेंट में आंसर लिखते हो तो उन आंसर का रिप्लाई मैं कमेंट में करके आपको भेजूंगा। ठीक है, कुछ बच्चे अगर जो इंटरेस्टेड है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैं रिप्लाई भेजूंगा। प्लस थोड़ा सा एक माल प्रैक्टिस हो रहा था कि मेरे नोट्स कई बच्चे सिर्फ डाउनलोड कर लेते थे, उसको सॉल्व नहीं करते थे, इसलिए अभी मैंने नोट्स डालना बंद किया है, बट बहुत जल्दी मैं वो नोट्स डालना भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारे आपके होमवर्क प्रॉब्लम है, स्क्रीन पॉज करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। टिल देन अब हम अगले लेक्चर में टोटल प्रोबेबिलिटी मैं सिखाने वाला हूँ आपको, तो वेट करो अगले लेक्चर तक का। टिल देन थैंक यू।